This is your first unit, electrostatics. It is a branch of physics which tells us about the charges at rest. ठीक है, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हमें चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पता चलता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी which tells us about the charges in motion. In first unit here we will study about only charges at rest. Okay. Now some important points regarding Coulomb's law and electric force. The topic is some important points regarding Coulomb's law and electric force. हमने पढ़ा है कि Coulomb's law में हम निकालते हैं फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square. This force is also called electric force. ओके तो ये हमारा है Coulomb's law. यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है इलेक्ट्रिक फोर्स की. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग Coulomb's law and electric force means F. Okay, the law is analogous to Newton's law of gravitation. I have told you that this law is analogous to Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation, what is the formula of Newton's law of gravitation? F is equal to G m1 m2 over R square, where m1 and m2 are two masses and R is the distance of separation between them. Then the force of gravitation will be G m1 m2 over R square. Here G is the gravitational constant in gravitational law. Here K is Coulomb's constant in Coulomb's law. Okay. Now this law is analogous to Newton's law, but there are some differences also. Okay. The first one is electric force between charged particle is much stronger than gravitational force. Okay, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Coulomb's law में Fe is much stronger than gravitational force. Okay, so Fe greater than है Fg. That's why when both Fe and Fg are present, we neglect Fg because its value is very small as compared to force of electrostatic force or electric force. Okay, electric force is also called electrostatic force, that force in which charges are at rest. Okay, the second point is इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Coulomb's law में कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ से फाइंड आउट किया है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. यू हैव स्टडीड. ओके. नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम between charges while gravitational force does not. क्लियर. जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है टू चार्जेस के बीच में Q1 एंड Q2 इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ मीडियम. एयर है या फिर वाटर है या फिर ग्लास है, बिकॉज हेयर Coulomb's law के अंदर जो हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always depends over the medium, because here K is Coulomb's constant whose value is 1 by 4 pi epsilon naught, and epsilon naught is the permittivity of free space, means air की permittivity है, epsilon is the permittivity of medium, any medium. So electric force always depends upon medium. Okay. Now इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. क्लियर. हमने अभी वेक्टर्स फॉर्म ऑफ Coulomb's law के बारे में पढ़ा था लास्ट टॉपिक, वेयर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स force at charge 1 due to charge 2 is equal and opposite to
force at charge Q2 due to Q1. Okay, these are the 4 points of differences between both laws. Clear? Now there is one question from this law. What is the physical significance of permittivity? परमिटिविटी हमने जो कूलम्स लॉ में किया था, जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. हेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है परमिटिविटी की. हम परमिटिविटी का यूज़ क्या है यहाँ पे. तो फिजिकली इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम रेफर्स टू द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मीन्स मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर परमिटेड और एबल टू पास बाय दैट मीडियम. मतलब जो हमारी परमिटिविटी है वो हमें बताती है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मीडियम के अंदर से पास हो सकती हैं. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किया था. म्यू इज 1 फॉर एयर एंड 1.5 फॉर ग्लास एंड 1.33 फॉर वाटर. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज 3 मीडियम. अब इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज स्पीडली कौन से मीडियम से पास होंगी. एयर से. बिकॉज एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉल. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि कितनी लाइट की स्पीड होगी किसी भी मीडियम के अंदर. सिमिलरली परमिटिविटी हमें क्या बताती है, किसी भी मीडियम में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम के अंदर पास होगी. क्लियर. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिग्निफिकेंस थी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता था डेंसिटी पे. किसी भी मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा तो वहाँ से, जैसे एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइट रेज ज़्यादा क्रॉस होंगी उस मीडियम से. ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है. इट मीन्स its optical density is very high, so less number of light rays will cross that medium. Similarly, epsilon permittivity tells us about the measure of electric field lines crossing that medium. Clear? Now this is all about the electric charge. Now our next concept is electric field.